साल में जो इतना बड़ा अग्निकांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है जहाँ पे इतने सारे इंसान मारे गए, इतने सारे इंसान जख्म हुए, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे क्या सच में बस होटल मैनेजमेंट का गाफिलती है, बस होटल की गाफिलती है? नहीं, इसके पीछे भी और रीजन हो सकता है। बीजेपी आज अपने मिছিল के माध्यम से जो बोलना चाहते हैं कि मेचो बाजार के अग्निकांड के विरोध में क्या हुआ एक्चुअली में, वो आए हैं आज पुलिस स्टेशन में, वो जाएगा पुलिस स्टेशन में, इसके पीछे एफआईआर दायर करेगा कि असल सच क्या है उसको सामने लाने के लिए। चलिए उन्हीं से देखते हैं कि असल में हुआ क्या था अग्निकांड में, उसके मेन रीजन क्या है, क्यों इतना बड़ा कांड को छुपाने के लिए बस होटल मैनेजमेंट की ऊपर दाय दे दिया गया है। चलिए आज देख लेते हैं। এই যে নির্মম নৃশংসতা দেখিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এর ভোট পরবর্তী হিংসা, সেটা স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের বলতে পারেন একটা কালো অধ্যায় রয়ে গেছে এবং এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের এই যে নির্মম নৃশংস হত্যালীলা তার বিরুদ্ধে আমাদের রাজ্য সরকারের গাফিলতি। রাজ্য সরকার সঠিক সময় সঠিক কাজ করলে এই অগ্নিসংযোগগুলো হতো না। বারবার করে তো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না, অ্যাক্সিডেন্ট একবার হয়, তো বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে মানে কি এখানে কোথাও কোনো নর্মস ফায়ার নর্মস কিছু পালন হচ্ছে না, যার জন্য সাধারণ মানুষের প্রাণ হারাতে হচ্ছে। এটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এবং রাজ্য সরকারের গাফিলতি। তারা সঠিক সময় সঠিক কাজ করছে না, দমকল দপ্তর কর্পোরেশন তারা সেই কাজ করছে না বলেই আমাদের সাধারণ মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। দেখুন, কোনো একটি আরবিট্রারি ডিসিশনে অগ্নিকাণ্ড হয় না, বন্ধ হয় না। ফায়ার নর্মস আছে, সেইগুলো যেন প্রত্যেকটা বাড়িতে ফলো হচ্ছে কিনা, প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে ফলো হচ্ছে কিনা, প্রত্যেকটা হোটেলে হচ্ছে কিনা, প্রত্যেকটা স্কুলে হচ্ছে কিনা, প্রত্যেকটা অফিসে হচ্ছে কিনা, একটা সার্বিকভাবে দেখতে হয়। হঠাৎ করে আমি এসে মনে করলাম যে আজকে, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো 14 বছর হয়ে গেছে, উনি 14 দিনের সরকার হয়ে গেছে, 14 বছর হয়ে গেছে, উনি এতদিন ধরে কেন কোনো মেজাজ দেননি? বারবার করে অগ্নিকাণ্ড করছে এবং সার্বিক চিন্তা ভাবনা করে তবেই সেই মেজাজ দিতে হবে। ফিরহাদ হাকিম নিজের কাজটা করলে তো অসুবিধা হতো না। ফিরহাদ হাকিম এইসব কাজ না করে উনি এখন অন্যান্য ওনার ধার্মিক কাজকর্ম করছেন বেশি, সেগুলো নিয়ে বেশি ব্যস্ত। তো ফিরহাদ হাকিমকে সেই কাজটা ছেড়ে কলকাতা কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব আছে সেটাই মনোসংযোগ করলে অনেক বেটার হয়। অগ্নিকাণ্ডগুলো 4 বছরের ঘটনা আমরা আর ঘটতে দেবো না, সেটাই অঙ্গীকার নেওয়া আজকে। কিন্তু যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের আমরা ভুলিনি, আমরা জীবনে ভুলবো না। তার কারণ যারা নিজেদের বুকে বিজেপির পতাকা নিয়ে বয়স হয়নি তাদের সে সময় চলে যাওয়ার, তবু চলে গেছিলেন এই জনমত তৃণমূল তাদের হারমাত বাহিনীর হাত ধরে। দোষ কী ছিল? এই ছেলেগুলো বা মেয়েগুলো, তাদের দোষ ছিল একটাই, যারা আজকে শহীদ হয়েছেন তারা বিজেপি করতো। এই পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতি করা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, সেই অপরাধ আমরা পেশ করেছি, করব, আবার করব। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম আজকে আমরা সকল শহীদদের প্রতি। সকালবেলা অভিজিৎ সরকারের বাড়ি গেছিলাম, তার দাদাও এসেছিলেন এখন, এবং তার পরিবারের সঙ্গে আমরা সকালবেলা দেখা করে এসেছি। এতে উত্তর কলকাতা থেকে উনি শহীদ হয়েছিলেন এবং সারা বাংলার যারা শহীদ হয়েছিলেন সকলকে আমরা আজকে প্রণাম এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি উত্তর কলকাতা বিজেপির তরফ থেকে জানাবো। जो इतना भयावह अग्निकांड पे इतने सारे इंसान मारे गए, इतने सारे इंसान जख्म हुए हैं, वो सबके पीछे मेन रीजन क्या है? मेन रीजन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला है कि इसके पीछे सब कुछ जांच किया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, और उन्होंने बोला है कि सब कुछ होटल मैनेजमेंट में पूरा गलती है, मतलब होटल का गाफिलती के कारण इतने सारे इंसान और इतने सारे इंसान जख्म हुए हैं। इसके पीछे बीजेपी का बोलना है कि नहीं, ये पूरा होटल का दायी नहीं है, ये सरकार का भी दायी है। सरकार अगर अच्छे से सब कुछ मैनेज करता, सब कुछ अगर अच्छे से चलता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता, इतना सारा इंसान जख्म नहीं होता, इतना सारा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये लोग अपने मिছিল में माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि सब कुछ अगर अच्छे से देखा जाता। लेकिन अभी के टाइम में आप सभी को देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में मंदिर उद्घाटन कर रहा है, लेकिन इतने कांड में यहाँ पे एक बार आए भी नहीं, वो देखा भी नहीं कि क्यों इतने इंसान मारे गए, इसके पीछे रीजन क्या है। वो बस दीघा पे मंदिर उद्घाटन करने में बिजी थे। बगल में सर 2 मिनट नहीं लेगा, क्यों 1.5 घंटा बाद पहुंचा? इसका जवाब कौन देगा? वहाँ इनलीगल पार्किंग, इनलीगल डाला, इनलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पहुंच नहीं पाया। दमकल ने यहाँ से पहुंचने में 5 मिनट लगता है। इसका जवाब कौन देगा? जो 30 लोग वहाँ मरे हैं, इसका जवाब बॉबी हकीम, सुजीत बोस और मुख्यमंत्री देंगे। हत्यारी मुख्यमंत्री है, बॉबी हकीम है, सुजीत बोस है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा भी किया एवं 6 तो रेस्टोरेंट को तत्काल बंद कर दिया। देखिए, मुख्यमंत्री का तो ये पुराना कहानी है। जहाँ घटना घटेगा यहाँ इतना
बड़ा घटना घट गया और दीदी कहाँ थी, मुख्यमंत्री कहाँ थी? पूरी में। पूरी जरूरी था कि लोगों का जो हत्या हुआ, जो लोग मर गए वो जरूरी था, लेकिन उनके लिए पूरी पहले जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो देखना चाह रही हैं कि जो हमारा मुस्लिम तुष्टीकरण का एक हमारे ऊपर आलोचना लगा, वो भी जिस तरह से वो दीघा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया, उसमें भी वो जगन्नाथ बोल नहीं पाएंगे। वो कैसे हिंदू है? किस प्रकार के हिंदू है? हिंदू नहीं है। দেখুন কলকাতায় পুলিশ আর কলকাতার মেয়র দুজনই ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন, ইনলিগাল পার্কিং, ইনলিগাল ডালায় রাস্তায় রাস্তায় ডালা, রাস্তায় রাস্তায় পার্কিং, রাস্তায় রাস্তায় গলি গলি ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। তাহলে ফায়ার ব্রিগেড কি কোথায় যাবে, কি করে যাবে? বিপল আছে তো, সুজিত বসু কোথায় ছিলেন? কেন 1 ঘন্টা লাগলো? এই তো পাশে ফায়ার ব্রিগেড, 1 ঘন্টা কেন লেগেছে? কেউ জিজ্ঞেস করুন কি ওখানে কি 5 মিনিটের রাস্তায় 1 ঘন্টা কেন লেগেছে যখন ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছানো? এটা কে জিজ্ঞেস করবে? দেখুন জোড়াসাঁকু থানা ইনলিগাল পার্কিং, ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন, ইনলিগাল ডালা, জোড়াসাঁকু থানা বসাচ্ছে। আপনি মছুয়াতে যান, দেখুন আপনি হাঁটতে পারবেন না, ওটা মছুয়াতে আপনি হাঁটতে পারবেন না ইনলিগাল ডালার জন্য। ওর দায়ী হচ্ছে যে 30 জন 25 জন মারা গেছে, পুলিশ, মেয়র আর মুখ্যমন্ত্রীর হত্যা, মুখ্যমন্ত্রী হত্যা করেছে। আর কেউ নেই। এই যে ইনলিগাল পার্কিং, ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন, ইনলিগাল ডালা, ওটা সরাতেই হবে। যেভাবে ওই রাস্তায় লোক ঢুকতে পারে না, কি করে ফায়ার ব্রিগেড যাবে? 1 ঘন্টা কেন লাগলো ফায়ার ব্রিগেড? এই তো পাশেই তো ফায়ার ব্রিগেডের অফিস আছে, এইখানে 10 গাড়ি সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে, কেন ঘন্টা লাগলো? এটা পুরো ষড়যন্ত্র আছে কি ওখানে হোটেল বিক্রি করে বা ভাঙে ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন হবে, আর বড় হবে, মেয়র কামাবে, ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর কামাবে, থানা কামাবে, এই জন্য মৃত্যু হয়েছে, আর কিছু নেই। क्या चीज? रूफटॉप होटल बंद करने के लिए, 6 होटल को बंद करने के लिए बोला है। कुछ नहीं, आज बंद करने के लिए बोली है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। बॉबी हकीम के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, थाना के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। कल पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा, बंद। बॉबी हकीम क्या किए थे? हुक्का बार बंद करवाए थे, फिर चालू क्यों हुआ है? पैसा सही तरीके से नहीं पहुंच रहा, सारा कहानी पैसे का और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बोली है बंद करवाने के लिए, कल कालीघाट में पैसा पहुंच जाएगा, अभिषेक बनर्जी के पास पैसा पहुंच जाएगा, बॉबी हकीम के पास पैसा पहुंच जाएगा, फिर सब खुल जाएगा, कुछ बंद नहीं होगा। बेचुआ बाजार में जो भयावह अग्निकांड हुआ है उसके विरोध में जोड़ासांको थाना पे घेराव अभियान चल रहा है अभी बीजेपी के माध्यम से। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी मिलके थाना घेराव करने के लिए जा रहा है। उन लोगों का बोलना है कि वहाँ पे जाके वो फिर से इसके विरोध में FIR फाइल करेगा कि कैसे हुआ, ये कुछ गाफिलती हुआ है, इसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है, जिसके विरोध में बीजेपी के सभी नेता भी यहाँ पे शामिल है। उन लोग वहाँ पे जाके इसके विरोध में FIR फाइल करेगा। उन लोगों का बोलना है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है गाफिलती के कारण हुआ है, वहाँ पे जैम था इसलिए वो लोग टाइम पे नहीं जा पाए थे, इसीलिए वहाँ पे इतने सारे जो लोग मारे गए। उसके पीछे ममता बंदोपाध्याय का बोलना है कि वो जाके इसके विरोध में देखेगा, जांचाई करेगा कि किस लिए ये हुआ है। वो लोग सभी कांड होटल मालिक की गाफिलती के कारण हुए, सच में ऐसा हुआ है ये मानना नहीं चाहते बीजेपी के सारे जो संसद है। सभी का एक ही चीज बोलना है कि ये गाफिलती के कारण हुआ है। गाफिलती अगर अच्छे से नहीं होता तो ये सब कुछ ध्यान से होता तो फिर सब कुछ ठीक ही जाता। जवाब दो। आप देख सकते हैं कि सभी के एक ही बोलना है कि जितने भी कॉर्पोरेशन गलत कर रहा है, जितने भी कॉर्पोरेशन तरीके से ये सब कुछ हुआ है, वो सबके विरोध में ये लोग बात उठाया कि साधारण जनता के लिए सब कुछ इजी होना चाहिए। सब कुछ अगर आसान होता तो फिर ये इतना कुछ नहीं होता। अगर सब कुछ नियम के और सब कुछ होता तब पर ये फिर नहीं होता है। इसके विरोध में ये बोलना चाहता है कि बेचुआ बाजार में जितनी भी भयावह कांड हुआ है, जितना बड़ा भयावह कांड हुआ है, वो सब गाफिलती के कारण ही हुआ है। अगर गाफिलती नहीं होता, अच्छे से सब कुछ जचाई होता, भी अच्छे से सब कुछ देखा तो फिर इतना बड़ा कांड नहीं होता, इतना इंसान अपना जीवन नहीं गंवाता। और इतने से ज्यादा जो इंजरी हुआ है, 100 से ज्यादा जो इंसान इंजरी हुआ है, सब कुछ गाफिलती के कारण हुआ है। अगर तो सरकार ममता बनर्जी अगर सब कुछ अच्छे से देखता, सब कुछ अच्छे से होता
होता तो फिर इतना कुछ नहीं होता। लोग को बोला है कि दमकल कर्मी 40 मिनट लेट वहाँ पे पहुंचे थे क्योंकि रास्ते पे जाम था। रास्ते पे अगर जाम नहीं होता, इतना कुछ नहीं होता तो फिर इतना लेट करके दमकल वहाँ पे पहुंचता नहीं और इतना सारा इंसान प्राण नहीं गंवाता। इतना कुछ नहीं होता अगर टाइम पे दमकल वहाँ पे पहुंच पाता या फिर फ्लैट के अंदर मतलब होटल के अंदर सब कुछ आग निभाने के लिए अगर अच्छे से होता तो फिर सब कुछ अच्छे से होता। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है कि सच में क्या होटल मालिक का ही गलती है? बीजेपी बोल रहा है कि होटल मालिक का गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा ममता बंदोपाध्याय सरकार के लिए। बीजेपी का एक ही बोलना है कि ये गलती बस सरकार होटल मालिक का नहीं है। ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा कसूर होटल मालिक पे दे दिया। हाँ कि होटल मालिक की गाफिलती के कारण इतना कुछ हुआ है, इतने सारे इंसान प्राण गंवाए हैं, इतने सारे इंसान जो जख्म हुए हैं, सब कुछ गाफिलती होटल मालिक का है। सच में ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी का ऐसा बोलना है कि सब होटल मालिक की गाफिलती के कारण, लेकिन असल कारण बोल रहा है कि ये पूरा सरकार का गाफिलती है। सरकार अगर अच्छे से सब कुछ देखता, सरकार अगर अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर पाता तो फिर इतना कुछ नहीं होता, इतना इंसान प्राण नहीं गंवाते, इतना सारे इंसान इतनी गंदी तरह से अपना प्राण नहीं गंवाता। सभी यहाँ पे मेचुआ बाजार पे जाके इन लोगों का जितने भी बीजेपी सांसद है, जितने भी बड़े यहाँ पे बीजेपी का मेंबर है, सभी अभी एक ही बोलना है कि मिছিল के माध्यम से कि वो जाके कंप्लेन करेगा सरकार पुलिस स्टेशन में कि ये इसका जांचाई अच्छे से किया जाए कि सच में क्यों हुआ था ये घटना और इसके पीछे क्या क्या रीजन है, कौन कौन है इसके पीछे। और इसके इतना बड़ा घटना जो हुआ है वो बस होटल मालिक की गाफिलती के कारण नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ राजनीतिक रीजन भी हो सकता है। अगर ममता बंदोपाध्याय ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, ममता बनर्जी ने, जिसके रीजन में इतना बड़ा गाफिलती हुआ है और इतने सारे इंसान प्राण गंवाए। 2012 में जो कांड हुआ था वो क्या रिपीट हुआ है? যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে সেখানে সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের গাফিলতি, যার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। রাজ্য সরকার যদি নিজের কর্তব্য পালন করতো তাহলে এই অবস্থা হতো না। অগ্নি নির্বাপন সম্পূর্ণ রাজ্যের দায়িত্ব, কর্পোরেশনের দায়িত্ব, সরকারের দায়িত্ব, দমকল মন্ত্রীর দায়িত্ব। তারা কি করছে? তারা বসে বসে শুধুমাত্র খেলা মেলা আর ফুর্তি করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ করছে না, যার জন্য সাধারণ মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। দিনের পর দিন ধরে এই ঘটে যাচ্ছে, সবাই জানে। তার সরকার কোথায় গেছে? সরকার কিসের জন্য আছে? ব্যস্ত আছেন 30 তারিখ নিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত আছেন নতুন দীঘাতে মন্দির বানাচ্ছেন। এত লোক মারা গেল, অন্য কোনো সেপেজি নেই, লোকের প্রতি সহানুভূতি নেই, উনি আসতে পারছেন না, সময় নেই। এই জন্য মেয়রকে ইমিডিয়েটলি ইস্তফা দিতে হবে, এই ফায়ার ব্রিগেড মন্ত্রীকে ইমিডিয়েটলি ইস্তফা দিতে হবে। এই বক্তব্য আমাদের। জানে কি করে ওখানটা পুরো একদম হাঁপ বানিয়ে রেখেছে, আগুনে হাঁপ বানিয়ে রেখেছে, ওখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। পার্কিং করে ইলিগাল ভাবে রাস্তা অকুপাই করে পুরো জায়গা জাম করে দিয়ে সব থানা দাঁড়িয়ে আছে এখন, ওখানে লোকাল কাউন্সিলর দেয়। দমকল কর্মীরা এত দেরি করে পৌঁছেছেন, এর পিছনে আসল দায়ী কি? আসলে কি ওটা দেখুন, রাজ্য সরকারের যে পুরো প্রসেসটা, তারা যে নিজেদের দায়িত্ব যদি পালন করতো তাহলে সমস্যা হয় না। দমকল দপ্তর যে এই যে টোটাল যে ফায়ার যে দমকল দপ্তর আছে, দমকল মন্ত্রী আছে, তাহলে তারা কি করছে? যদি এতই, এবং খাস কলকাতার বুকে যদি এটা হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সেখানে অগ্নিসংযোগ কোথাও কিছু হলে তখন সেই দুর্ঘটনা হলে সেখানে কি হয়? আজকে যে আপনাদের এই অভিযান থেকে মূলত কি বার্তা দিতে চাইছে? গত 7 দিনে 3 জায়গায় অগ্নিসংযোগ, আগুন জ্বলছে, এই মুহূর্তে সেক্টর 5 জ্বলছে, কর্পোরেশনরা এবং দমকল মন্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। এখানে বড় বাজারে যখন হলো, বড় বাজারে সুকান্ত মজুমদার থেকে শুভেন্দু অধিকারী সকলে চলে এসেছিলেন, তারপরেও এখানে মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেননি এবং এখানকার স্থানীয় এমএলএ বিবেক গুপ্তা এবং স্থানীয় এমপি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাদের নামে তো মিসিং ডায়েরি করাবো। বড় বাজারে এত বড় অগ্নিসংযোগ ঘটলো, আগুন জ্বললো, এতজন মারা গেল, আপনারা দুজন কোথায়? ভোটে
করে জিতে তো লাপাতা হয়ে গেছেন, আপনাদের নামে মিসিং ডায়েরি করে একটা লুকআউট নোটিশ জারি করতে হবে যে এমএলএ এবং এমপি সাহেব একটু আসুন। কলকাতা কর্পোরেশন এখন ইললজিক্যাল কথাবার্তা। আমাদের পৌরপিতারা রয়েছেন, বিজয় ওঝা, সজল ঘোষ, মীনাদেবী পুরোহিত, তারা ইতিমধ্যে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দেবেন, এবং তারাও কর্পোরেশনে এই বিষয় নিয়ে তুলবেন। রুফটপ রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেওয়া এটা কোনো সলিউশন নয়, এটা হচ্ছে একটা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য একটা গিমিক। এর বিরুদ্ধে আজকে এখানে আমাদের সিনিয়র নেতৃত্ব তাপস দা থেকে শুরু করে আমাদের পৌরপিতারা বিজয় দা, সজল দা এবং মীনাদি বাইরে রয়েছেন, এখানে সিনিয়র নেতৃত্ব আলোক চান্দ থেকে শুরু করে সকলে রয়েছেন, এবং সকলে মিলে গিয়ে থানায় গিয়ে একটাই প্রশ্ন করবে, এত ইল্লিগাল কাজ হচ্ছে কি করে? তাহলে থানা কি লিগাল কাজকে, মানে ইল্লিগাল কাজকে লিগাল করার জন্য বসে রয়েছে থানা এবং কর্পোরেশন? তার জবাব তো তাদের দিতে হবে। अग्निकांड के प्रतिवाद में मिছিল हो रहा है। कल जो इस तरह से परसों जला है वो सिर्फ जो है बेआईनी भाव से वहाँ पर पार्किंग के चलते हुआ है। बेआईनी भाव से वहाँ ट्रक लगा हुआ था, 40 मिनट लगा ट्रकों को वहाँ से हटने में। 40 मिनट तक ट्रक का इंतजार करके तब जो है ना एम्बुलेंस घटा, नहीं तो इतने लोगों का प्राण नहीं जाता। इसका सिर्फ और सिर्फ दायी ममता सरकार है। और वो तो ममता बनर्जी, आप देखिए उनका वक्तव्य को देखिए, ममता बनर्जी पूरा जो है लोगों का आंख पर पट्टा डाली है। किस तरह से हुआ है वो अभी भी जो है ना प्रमोटर और पुलिस को जो है ना बिल्डिंग सफाई के लिए दे रही। वो अग्निकांड क्यों हुआ इसके प्रतिवाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पर बेआईनी भाव से ट्रक लगकर पपीता का बिक्री होता है, पूरा ट्रक लगकर पूरा जाम रहता है, रास्ता में आदमी नहीं चल सकता है। वहाँ के लोगों को, वहाँ का औरतें दिन में जो है ना निकल नहीं सकती है, ऐसा वहाँ का हिसाब है। इसलिए वहाँ से हिंदू भाग रहे हैं। यह परिस्थिति है, ममता बनर्जी खुद तैयार की है। बच्चे लोग, 2 स्कूल है वहाँ पे, आप लोग जाकर देखिए, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये वहाँ की स्थिति हुआ है और ममता बनर्जी उसके विषय में कुछ भी नहीं बोली। सिर्फ उन्होंने टोटल जो है ना होटल मालिक के ऊपर में डाल दिया। होटल मालिक का, होटल में आग लग सकता है, लेकिन क्या देखने का किसका दायित्व है? कॉर्पोरेशन का है। आग जो लगा वहाँ पर जो है ना कलकत्ता के अंदर में 2 मिनट के दूरी पर जहाँ दमकल है वहाँ 40 मिनट में दमकल पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से जो है जाम था, पूरा रास्ता ब्लॉक था, पूरा इतना ट्रक लगता है वहाँ पे, रोड पे ही धंधा होता है। आपको क्या लगता है पूरा दायी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ये शासन बताइए है ना, इसके लिए कुछ नहीं किया गया। फायर ब्रिगेड 3 साल से लाइसेंस रद्द था, 3 साल से फायर लाइसेंस नहीं था, उसके बाद में भी वो लोग लाइसेंस के लिए कुछ नहीं किया। इसका दायी कौन है? 3 साल हो गया उसका लाइसेंस रेन्यूअल नहीं हुआ था, उसका दायी किसका है? इतना जो आदमी मरा है, मरने का संख्या 14-15 दिखा रहा है, लेकिन वो 50 से भी ऊपर है। उसका दायी कौन है? वो सरकार है, वो ममता सरकार। अग्निकांड के विरोध में बीजेपी आज रास्ते पे आए हैं। वो सभी का एक ही चीज़ बोलना है कि ये कांड पूरी गाफिलती के कारण हुआ है। इतने सारे इंसान, इतने जो जख्म हुए, इतने सारे इंसान जो मारे गए, ये सब कुछ गाफिलती के कारण हुआ है। अगर सब कुछ अच्छे से होता था, अगर सब कुछ अच्छे से जा सकता था, तभी ये सब ठीक होता था। लेकिन ये गाफिलती के कारण इतने सारे इंसान प्राण गंवा बैठे, जिसके कारण वो अभी पुलिस स्टेशन के सामने आए हैं FIR दायर करने के लिए कि ये सब क्यों हुआ, इसको अच्छे से जांचाई किया जाए कि बीजेपी कौन रीजन है, सब कुछ देखा जाए। फिलहाल सभी अभी बीजेपी के सारे सांसद यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने FIR दायर करने के लिए खड़े हैं। कैमरा में शुभजीत के साथ मैं आशा, रिपोर्ट न्यूज़ 09 कोलकाता। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।